السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل اردو کہانی لاج پہ خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی۔ مایا ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ جب اس نے جنم لیا، اس کی پیدائش موسم خزاں میں بہار کی تازہ جونکی کی مانند تھی۔ ماں باپ نے خوشی منائی اور تمام خاندان میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ سب حیران تھے کہ بیٹی کی پیدائش پر کون اتنی خوشی مناتا ہے، جبکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے لیکن اسے زحمت سمجھا جاتا ہے۔ دراصل بیٹی زحمت تبھی ہوتی ہے جب اس کی قسمت خراب نکلتی ہے۔ مایا بچپن سے ڈرپوک واقعہ ہوئی تھی۔ ایک بھائی بڑا تھا، پھر مایا کے بعد ایک بہن اور ایک بھائی نے جنم لیا۔ یوں یہ کل 4 بھائی بہن تھے۔ مایا اپنے بہن بھائیوں میں کم شکل تھی۔ اس کا رنگ بھی دبا ہوا تھا، جبکہ باقی تینوں گورے چٹے تھے۔ شاید اپنے سانولے ہونے کا احساس اسے خود اعتمادی سے دور لے گیا۔ اپنے اس احساس کمتری کی وجہ سے وہ ہر تقریب میں چھپی چھپی رہتی۔ کوئی تصویر یا مووی بناتا تو وہ فوراً اپنا چہرہ چھپا لیتی یا دور بھاگ جاتی۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ احساس بڑھتا گیا۔ جب بھی لوگ اس کے رشتے کے لیے آتے، وہ چھوٹی بہن کو پسند کرتے، اسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ بالآخر اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی اور وہ منہ دیکھتی رہ گئی۔ مایا کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ شاید باپ کے چلے جانے سے وہ اور زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ ماں نے شوہر کے فوت ہوتے ہی سسرال والوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حالانکہ مایا سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ وہ شروع ہی سے مشترکہ فیملی سسٹم میں پلی تھی۔ آنکھ کھولی تو ارد گرد بہت زیادہ پیار کرنے والی ہستیوں کو پایا۔ دادا، دادی اور پھوپھی وغیرہ نے اسے بہت لاڈ پیار دیا۔ مایا کی شخصیت پر باپ کی وفات اور ددیال کی جدائی سے بہت برے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ وہ ایک نامکمل شخصیت بنتی جا رہی تھی۔ مایا کی ماں کو اس کی شادی کی بہت فکر تھی۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک رشتہ آ گیا تو بغیر چھان بین کیے اس نے بیٹی کی شادی کر دی۔ وہ 17 برس کی تھی جب دلہن بن کر سسرال آ گئی۔ یہاں آ کر اسے احساس ہوا کہ اس کی شادی بہت غلط قسم کے لوگوں میں ہو گئی ہے۔ یہ بہت زیادہ چھوٹے دل و دماغ کے مالک تھے اور تنگ نظر بھی تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر ٹوکنا اور شک کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ اس کا شوہر بھی عجیب مزاج کا مالک تھا۔ وہ معاملے کی صداقت جانے بغیر ماں اور بہن کی باتوں پر یقین کر کے اس پر سختی کرنے لگتا۔ اسی روز و شب میں مایا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کا نام سبوہ رکھا گیا۔ مایا کا دل بچی کی وجہ سے خوش رہنے لگا۔ ایک روز وہ اپنی بچی کے ساتھ صحن میں کھیل رہی تھی کہ سامنے والے گھر میں نہ جانے کب سے کوئی لڑکا کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ مایا اپنی سال بھر کی بیٹی کے ساتھ کھیل میں ایسی مگن تھی کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ اسے کون دیکھ رہا ہے۔ اتنی میں اس کی ساس آ گئی۔ اس نے جو لڑکے کو ادھر تکتے پایا، سیخ پا ہو گئی۔ پھر اس نے اس بات کو اتنا اچھالا کہ گلی میں پڑے تنکوں تک کو خبر ہو گئی۔ بیٹے کے بھی خوب کان بھرے، یہاں تک کہ اس نے بدگمان ہو کر بیوی کو طلاق دے دی۔ مایا روتی ہوئی میکے آ گئی۔ ماں نے دل پر پتھر رکھ کر بیٹی کو پناہ دے دی، مگر وہ مایا کے آنے پر خوش نہیں تھی۔ بیٹی کو خوب سنائی کہ تم نے ضرور کچھ غلط کیا ہوگا کہ بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ مایا کی بیوہ ماں کا معاشی سہارا اس کا بڑا بیٹا تھا جو انہی دنوں برسرے روزگار ہوا تھا۔ ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا جو بھی زیر تعلیم تھا۔ وہ خوفزدہ تھی کہ اب مایا اور اس کی بیٹی کا خرچہ کیسے پورا ہوگا۔ مایا کو ماں کی پریشانی کا احساس ہوا تو اس نے تگ و دو شروع کر دی۔ بالآخر ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری مل گئی۔ جب سبوہ اسکول جانے کے لائق ہو گئی، اسے بھی اسی اسکول میں داخل کروا دیا۔ مایا کی امی نے اس کے سسرال سے رابطے کی بہت کوشش کی تاکہ بیٹی کا گھر پھر سے بس جائے، لیکن ناکامی ہوئی۔ سبوہ ماں کے ساتھ اسکول جاتی اور پھر ساتھ گھر آ جاتی۔ وہ بہت ذہین اور پیاری بچی تھی۔ بچپن سے خاموش طبع تھی۔ اسے ماں سے بہت محبت تھی۔ ماموں بھی سبوہ کا بہت خیال کرتے تھے۔ نانی دل سے نواسی کو چاہتی تھی مگر ظاہر نہ کرتی تھی۔ دراصل وہ اس چکر میں لگی رہتی کہ کسی طرح دوبارہ بیٹی کا گھر بس جائے۔ ایک روز سبوہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ہاتھوں اور ہونٹوں کی رنگت نیلی پڑ گئی تھی۔ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے دیکھتے ہی بتایا کہ اس کے دل میں پیدائشی سوراخ ہے۔
सबू की हरकत और सकनात नॉर्मल बच्चों से मुख्तलिफ थी। वो शरारती न थी। खामोश खामोश रहने वाली बच्ची हर वक्त अपनी माँ के साथ लगी रहती थी। इधर इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। वो हर हफ्ते अपनी बेटी को लेने आता था और सबू अपने बाप के साथ एक दिन के लिए घर चली जाती थी। टूटे हुए घर के बच्चे कांच से भी ज्यादा हसास दिल रखते हैं। जरा सी तेज हवा उनके जहन के दरीचों को हिला कर रख देती है। सबू भी अपनी माँ की तरह हसास थी। दिल में पैदाइशी सुराख होने की वजह से वो आम बच्चों की तरह नहीं थी। उसके छोटे से नन्हे जहन में पता नहीं क्या क्या ख्यालात आते होंगे। शायद सोचती हो कि आखिर मेरे अम्मी अब्बू अलग क्यों रहते हैं और वो दूसरी औरत के साथ क्यों रहते हैं। इस तरह के हजार सवालात उसके जहन में कुलबुलाते थे। वो माँ की गोद में सर रखकर खामोश लेटी रहती। वो कोई फरमाइश और जिद न करती। पढ़ाई में 100% नंबर लाती थी। उसकी तहरीर ऐसी थी जैसे मोती पिरोए हों। इतनी सी उम्र में इतनी खुशखत तहरीर और इस कदर सोबर बच्ची शायद ही कभी किसी ने देखी होगी। माया की वालदा बार बार उसको दूसरी शादी पर उकसाती, मगर वो मना करती। वो निकाह सानी नहीं करना चाहती थी, सिर्फ सबूक के लिए जिंदा रहना चाहती थी और उसकी बेहतरीन परवरिश में उम्र गुजार देना चाहती थी। सबसे बड़ा मसला सबूक के दिल के सुराख का था, जिसके इलाज मुआवजे पर काफी रकम दरकार होती थी। देखने में तंदुरुस्त लगती मगर सर्दियों में काफी बीमार पड़ जाती। यूं माया उसकी तरफ से परेशान रहती कि इलाज पर खासे पैसे उठ जाते थे। माया की वालदा हर वक्त लड़ती रहती कि हम कहां से तुम्हारी बच्ची का इलाज कराएं, तुम दूसरी शादी कर लो। माया के भाई सबू से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उसकी बीमारी की तरफ से फिक्रमंद रहते थे। वो भी चाहते थे कि माया शादी कर ले। भाग दौड़कर मां ने बेटी के लिए एक रिश्ता तलाश कर ही लिया, लेकिन उन्होंने सबूक की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया। माया का निकाह खावर से हो गया, उसे दूसरी बार दुल्हन बनाया गया। ये सब कुछ सबू देख रही थी। वो मां को दुल्हन के रूप में देखकर हैरान हो रही थी। उसके नन्हे से जहन में तरह तरह के सवालात उठ रहे थे। क्या मां चली जाएगी, मुझसे दूर हो जाएगी? क्या ये अंकल मेरी अम्मी को मुझसे छीन ले जाएंगे? क्या मैं फिर अकेली रह जाऊंगी? मां के साथ साथ लगी रहने वाली सबू हजारों ख्वाहिशात के साथ खामोश निगाहों से दुल्हे के रूप में आए शख्स को मां को ले जाते हुए देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह निकली थीं। वो अपने सवालों के जवाबात किससे पूछे? अपनी मां से, नानी से, जिन्होंने मिलकर आज उसे अकेला कर दिया था। वो मासूम बच्ची बेजुबान थी, किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। उस रात वो अपनी नानी के साथ सोई तो शब भर जागती रही और चुपके चुपके रोती रही। किसी को उसके बहते हुए आंसुओं की खबर ना हुई। माया ने स्कूल छोड़ दिया था। कुछ दिन तो बच्ची सास पर स्कूल जाती रही कि वहां मां मिल जाएगी, लेकिन पता चला कि ससुराल वालों ने माया की जॉब छुड़वा दी है। अब उसका दिल स्कूल जाने को ना चाहता। नानी सुबह उठाती, वो तबीयत की खराबी का बहाना करके लेटी रहती। यूं रोज स्कूल की छुट्टियां होने लगी। एक दिन उसकी मां अपने शौहर के हमरा मिलने घर आई तो वो भागकर उसे लिपट गई जैसे सदियों का इंतजार हो। वो पहले से ज्यादा संजीदा और उदास बच्ची बन गई थी। उसे उस शख्स से हसद हो रहा था जो उसकी मां को ले गया था। उसके साथ अपनी मां का बैठना उसे नागवार गुजर रहा था। जब उसकी मां अपने घर जाने लगी तो सबू रोने लगी। उसने जिद पकड़ ली, नहीं अम्मी, आप नहीं जाएंगी, मेरे पास रहें। वो बिलखने लगी, मगर कौन उसकी बात मानने वाला था। मां भी मजबूर थी, अपने शौहर के हुक्म की तामील करना चाहती थी ताकि दोबारा कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए और घर टूट जाए। वो अपनी मां से वादा कर गई कि आइंदा आऊंगी तो सबू को साथ ले जाऊंगी। ये वो वादा था जो कभी वफा न हो सका। खावर और उनके घर वालों ने बच्ची की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो दिल की मरीजा थी। सबू ने मां की जुदाई का गहरा असर लिया। उसने पढ़ाई पर तवज्जो देनी छोड़ दी। उसकी स्कूल से शिकायत आती थी, लेकिन उसकी सेहत गिरती जा रही थी और वो दुबली होती जा रही थी। उठते बैठते नीली रंगत पड़ जाती और सांस लेने में दुश्वारी होती। भूख प्यास खत्म हो गई थी। तभी नानी ने उस पर जबर करना मुनासिब न समझा
यूं सबूर ने स्कूल जाना छोड़ दिया। माया बेटी के दुख से आगाह थी, मगर वो अब किसी और के कब्जे में थी। ऐसी जाल में जकड़ी गई थी कि फड़क भी न सकती थी। उसकी बेटी जो खूबसूरत थी वो हड्डियों का ढांचा हो गई थी। उसने 2-4 बार दबी जुबान से कहा कि मैं चंद दिनों के लिए सबूर को लाना चाहती हूँ। सास ने सख्ती से मना कर दिया कि हम बीमार बच्ची को नहीं रख सकते। वो एक बार आ गई तो वापस जाने पर और ज्यादा गमज़दा हो जाएगी, नया मसला खड़ा हो जाएगा। बेहतर है कि तुम भी उससे ज्यादा प्यार मोहब्बत का इजहार ना किया करो, वरना वो और ज्यादा तुम्हारी याद में घुलने लगेगी। उसको सब्र नहीं आएगा। दिल पर पत्थर रख लो और उसे भी सब्र आने दो। वो किसी गैर के पास नहीं है, अपनी नानी के पास है, जो उसे तुमसे बढ़कर प्यार करती है। जो जितना भी प्यार करे, बच्चे माँ के प्यार को ही तरसते हैं। माँ के प्यार का कोई निमुल बदल नहीं हो सकता। तभी एक रोज माया शौहर की मर्जी के खिलाफ अपनी बच्ची को घर ले आई तो बच्ची के साथ ससुराली ने ऐसा बर्ताव किया कि बच्ची घबरा गई। अपनी मासूम बेटी की हालत जार देखकर माया उसको दोबारा माँ के पास ले आई और फिर कभी उसने सबूर को अपने घर बुलाने की जुर्रत न की। शौहर ने उसके बाद माया को भी मेके जाने से रोक दिया ताकि बच्ची माँ से ना मिले और उसको भूल जाए। वो कहता कि ये लड़की तुम्हारी माँ ने क्यों रखी हुई है, इसको इसके बाप के घर भिजवा देना चाहिए। ये तुम्हारी वालदा की नहीं, इसके बाप की जिम्मेदारी है, वही इसका खर्चा उठाए। जब माया ऐसी बातें सुनती थी उसका दिल दुख जाता था। माया की वालदा जानती थी कि बाप के घर सबूर का ठिकाना नहीं है। वहां सुतेली माँ का सलूक इस बच्ची से और भी बुरा था। आफियत इसी में थी कि वह नानी के पास रहे। सबूर कई बार शदीद बीमार होकर अस्पताल दाखिल कर दी जाती। सारा खर्चा नानी और मामू बर्दाश्त करते। वो मासूम कली कम उम्री में ही किस कदर मसाइब का शिकार थी और परेशान हाली से गुजर रही थी। किसी ने भी कभी इस मासूम बच्ची के दिल में झांक कर ना देखा। कैसी कैसी हसरतें उसके दिल में थीं। अब तो बड़े मामू की भी शादी हो गई थी। फिर साल बाद दुल्हन ममानी के यहाँ बेटा पैदा हो गया तो सबूर खुश हो गई। नन्हे बच्चे को उठाने से उसे सुकून मिलता था। इन्हीं दिनों माया ने भी बेटे को जन्म दिया। माया बेटा लेकर एक रोज माँ से मिलने आई तो सबूर को अजीब से एहसास हुआ। जी चाहा इस बच्चे को अपनी माँ की गोद से उठाकर फेंक दे और वो खुद माया की गोद में लेट जाए। उसका सुतेला बाप अपने बेटे का बहुत ख्याल रखता था। उसकी जरा सी तकलीफ पर परेशान हो जाता था। वो अगर रोने लगता तो बीवी को डांटता कि माया तुम मेरे बेटे का जरा भी ध्यान नहीं रखती हो, क्यों रो रहा है ये आखिर, कहीं इसको चोट तो नहीं लगी। तब वो ये देखकर सोचती थी कि ऐ काश वो उसकी बेटी का भी इसी तरह ख्याल रखता, उसकी परवाह करता। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह निकलते थे। जब सबूर मामू के बेटे को उठाती, अगर वो जरा सा भी रोता तो ममानी दौड़ कर आ जाती। अरे मुन्नी तुमने ये क्या कर दिया, कैसे उठाया है, कहीं से चोट तो नहीं लगी, क्यों रो रहा है। वो दिल ही दिल में कुड़ कर रह जाती कि वो तो मुन्नी से इतना प्यार करती है और ममानी कैसी बदगुमानी करती हैं। ये वो बच्ची थी जो अपनी माँ के बगैर बाथरूम तक न जाती थी। आज वो शीरी हस्ती के बगैर रह रही थी। बीमार पड़ जाती तो जुबान से बेख्तियार निकलता, अम्मी अम्मी आ जाओ। वो दुआ करती माँ आ जाए और उसका ख्याल करे, लेकिन ये हसरत ही बन गई थी। माँ नहीं आती थी क्योंकि वो किसी और की बीवी बनकर उसकी माँ नहीं रह गई थी, बल्कि एक मजबूर बीवी हो चुकी थी। लागर होते होते वो बिस्तर से लग गई। माया की आरज़ू थी उसकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, मगर बीमारी ने सबूर को ऐसा घेरा कि वो स्कूल जाने के काबिल ना रही। इन्हीं दिनों उसकी बीमारी इतनी बड़ी कि उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। माया को भाइयों ने इतला दी, मगर वो बेटी से मिलने ना आ सकी। दोबारा माया को फोन किया गया। उसने कहा मेरा बेटा इस हाल की वजह से बीमार है, जरा उसकी तबीयत संभल जाए तो आ सकूंगी। कुछ दिन बाद वो आ गई। माँ को देखकर सबूर के तन मुर्दा में जान पड़ गई। उसका जी चाहा कभी उसको छोड़कर वापस ना जाए। 1 घंटा बामुश्किल गुजरा कि माया का शौहर उसको लेने आ गया। कहने लगा माया घर चलो, शायान को बुखार है। वो फौरन उठ खड़ी हुई। वो इतनी उजलत में गई कि बेटी को अलविदाई बोसा भी न दे सकी। ये बोसा उसके लबों पर ही रह गया
और वो शोहर के साथ हुक्म के गुलाम की तरह चली गई। सबू माँ को जाते हुए देखती रह गई। इस झटके ने उसको निडाल कर डाला। उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसकी नानी भी शायद तीमारदारी से थक गई थी। इस रात वो भी गहरी नींद सो गई। बच्ची बेबसी के आलम में रात भर जागती और कराहती रही। उसको नींद नहीं आ रही थी। सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी कि शायद माँ लौट आए। सुबह तक उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि नानी को आवाज देकर जगा देती। वो अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहती थी, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी माँ आकर चली जाए और वो आंखें ना खोल सके। जाने कितनी घड़ियां कठिन इंतजार की अजियत में डूबी वो आंखें खोले पड़ी रही और आखिरकार इस जाने फानी से कूच कर गई। सुबह का उजाला मध्यम रंग से तेज रोशनी में तब्दील हो गया। फिर धूप खिड़कियों को गरमाने लगी तो नानी ने सोचा, सबू आज बहुत देर तक सोई है, अब उठाकर दवा वगैरह दूं। उनका भी जी न चाहता था कि आराम से सोई बच्ची को जगाएं, क्योंकि मुश्किल से उसको तकलीफ में नींद आती थी। दिन के 11 बजे बिलाखिर नानी से रहा न गया। उसने सबू के चेहरे से कंबल उठा दिया। उसकी आंखें किसी के इंतजार में खुली हुई थी, जिससे जाग रही हो, लेकिन वो जाग नहीं रही थी। वो इस बेरहम दुनिया को छोड़कर अपने खालिक हकीकी के पास जा चुकी थी। उसकी माँ को सबसे पहले अस्पताल से नानी ने फोन किया कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर मिलते ही माया तड़प गई और बगैर ससुराल की परवाह किए वो अस्पताल आ गई। देखा तो उसकी बेटी की खुली आंखें उसका इस्तकबाल कर रही थीं, जैसे सवाल कर रहे हों, अम्मी इतनी देर क्यों लगा दी और अब आने का क्या फायदा? क्या है, मैं तो तुमसे गले भी नहीं मिल सकती। माया चीख मारकर बेटी की लाश पर गिर पड़ी। मेरी बच्ची तो इंतजार करती रही, मगर मैं कितनी बदनसीब थी जो तेरे इंतजार के बावजूद भी नहीं आ सकी। उसकी खुली आंखें जैसे हर एक से सवाल करती हों, इतनी मासूम सी बच्ची को क्यों तड़पाया? दुनिया वालों को क्या हक था कि उन्होंने मेरे नसीब की खुशियां और मोहब्बतें मुझसे छीन ली? क्यों? आखिर क्यों?